Hi, very good noon. Myself Rohit Kumar, Assistant Professor, Bansal Institute, Faculty of Department of Management Sciences. Today I am going to take my presentation. I am going to take my presentation on the topic entrepreneur and innovation. So let's start with the a little bit of introduction of entrepreneurship. Let me just tell you something about entrepreneur, right? So entrepreneur basically a person who has the risk-taking ability and a person who started a business with the new ideas or create his or her own venture is known as entrepreneur. Let's come up with the slides. We have a little bit slides over there and just go through the slides and step by step I will tell you the everything about the entrepreneur and definitely give you the valuable information regarding this. Now how you can just start up your business and how you can just generate your ideas because there are techniques there. So just come up with the slides. Let's understand what is innovation. So it is a very important term, innovation. Innovation is nothing but you need to start up with the new idea. Innovation is the specific tools of entrepreneur, the mean by which they exploit change as an opportunity for a different business or a different service. Right? So if you just create anything with a new idea, because we have an intellectual brain and in every person has their own vision, everyone has their own thoughts. So when they just start up doing something new or a novel things, so it is comes under the innovation. Like they make anything which is not unique, which is not obvious, right? So this is known as like innovation. So innovation is the specific tools of entrepreneur. यानी कि यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो entrepreneur है उसका एक स्पेसिफिक टूल है इनोवेशन जिसके थ्रू वो क्या करता है नए आइडियाज को जनरेट करता है. आइए आगे देखते हैं. Entrepreneurs needs to search being purposefully for the sources of innovation, the changes and their symptoms that indicate opportunities for the successful innovation. राइट तो एक तरीके का एक पाथ है जिसको एंटरप्रेन्योर क्या करता है यूज करता है इनोवेशन को अपने नए वेंचर को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एंटरप्रेन्योर में बहुत सारे मैनेजरियल स्किल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के आप एंटरप्रेन्योर्स भी अपनी लाइफ में देखते हैं. जैसे अगर हम बात करें सोशल एंटरप्रेन्योर की तो सोशल एंटरप्रेन्योर इस तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बेसिकली सोशल वर्क करते हैं, सोसाइटी में जो भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए वर्क करते हैं. जैसे गांव में आपने देखा होगा जो विलेज एरियाज हैं वहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपका मतलब एनजीओज वगैरह चलाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो सारे के सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं विद दी लाइक अदर आइडियाज. उनके जो आइडियाज हैं जो काम करने के प्रोसीजर्स हैं उसमें सर्टेन चेंजेस होते हैं. ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु इज जस्ट डूइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस. उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वहीं से रीप कर रहा है, मींस ही इज इन अ perfect competition market. He is facing the challenges. But if we talk about the entrepreneur, so he is the person who start up with the idea, with a business, with a new idea, and who reap the profit. Means the market is basically उसी का ही पूरा मार्केट होता है, वो मार्केट ही क्रिएट कर देता है. जैसे कि हम बात करें अभी बिजनेसमैन में तो कई सारे बिजनेसमैन हैं जो सिम कार्ड इंडस्ट्री में हैं. रिलायंस में आप देखते होंगे धीरू भाई अंबानी को, स्टील टाटा स्टील्स में आप देखते होंगे जमशेद जी टाटा या उसके जो एंसेस्टर्स हैं अभी आज के टाइम पे, सॉरी जो भी लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो ओनर हैं अभी उसके, तो ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को चला रहे हैं. लेकिन अभी के टाइम में अगर हम बात करें कि कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है तो हम कुछ लोगों के नाम ले सकते हैं, जैसे लैरी पेज हो गए हमारे, ठीक है, या हमारे जो है अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर में तो हमारे एलन मस्क हो गए जो टेस्ला कंपनी को टेक ओवर किया, निकोलस टेस्ला के नाम से, मतलब निकोलस टेस्ला जो साइंटिस्ट है उनकी कंपनी को टेक ओवर किया. तो आज के टाइम पे जो मून विजन लेके चल रहे हैं, मतलब लोगों को विजिट करा रहे हैं, मून पे ले जा रहे हैं, तो ये कोई और नहीं कर रहा है. दैट मीन्स कि ये अपना खुद का एक मार्केट बना रहे हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया जो कि एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में होता है. इसके अलावा एक टर्म आपने सुना होगा जिसमें एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बारे में आपने सुना होगा. लेट मी जस्ट क्लियर द डाउट
कि लोग कभी कभी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर यूज तो करते हैं बट दे डोंट नो दी डिफरेंस कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर में अगर हम बात करें तो हम जैसे मैंने आपको टेस्ला के बारे में बताया, टेस्ला कंपनी के बारे में, वैसे अगर हम शॉर्ट टर्म पे कोई एग्जांपल ले सकते हैं तो हम मार्क जुकरबर्ग फेसबुक में ले सकते हैं। ही इज ट्रीटेड एज अ एंटरप्रेन्योर क्योंकि उन्होंने लोगों को सोशल नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की और उसमें उन्होंने फेसबुक जैसे एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया मार्केट में जिससे कनेक्टिविटी बन सके, जिससे कि कोई अननोन आदमी भी आपस में फ्रेंड्स बन सकते हैं और वो कोलैबोरेट करके कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। दे कैन जस्ट यूज देयर रिसोर्सेज एंड मेक देयर ओन बिजनेस आइडियाज। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं पॉसिबल। तो उन्होंने ये दिमाग लगा के अपना स्टार्ट किया। अच्छा, वहां पर आपने देखा होगा कि हमारे एक इंडिया के सुंदर पिचाई भी हैं जो जिन्होंने अभी एज अ सीईओ है वहां पर, तो वो भी हमारे यहाँ एज अ एंटरप्रेन्योर आप नहीं कह सकते, वो एज अ एंटरप्रेन्योर है। वो बिजनेस आइडियाज जो जैसे कि उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया मार्क जुकरबर्ग ने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करा के या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस होते हैं या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो सारी चीजों को या नए आइडियाज के साथ चीजों को स्टार्टअप करना होता है, तो वो सारे काम एक इंट्राप्रेन्योर का होता है, ना कि एंटरप्रेन्योर का। क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने तो एक बिजनेस स्टार्टअप कर दिया, ठीक है, अब उसके अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, उसके अंदर जो वेरिएशंस हैं, उन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एंटरप्रेन्योर होगा। जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको हम एज ए एम्प्लॉय भी ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर हु इज जस्ट स्टार्टिंग द बिजनेस, ठीक है, और एक आदमी जो उसके रिसोर्सेज को एक नए तरीके से रिडायरेक्ट कर रहा है अपॉर्चुनिटी की तरफ, या एक जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के लिए डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स का इस्तेमाल कर रहा है, डिफरेंट आइडियाज को जनरेट कर रहा है और उससे कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बना रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है, जैसे मैंने बताया कुछ नया डेवलप करना है, राइट। जैसे आप सभी लोग कॉपीराइट की बात करते हैं या आप पेटेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली हम बात करते हैं वहाँ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे टर्म आता है प्रॉपर्टी, तो आपको पता होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो पहले के टाइम पे हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है। जमींदारी आंदोलन और बाकी सारी चीजें हुई तो ये इसको जो है हटा दिया गया था, फंडामेंटल राइट अब नहीं रह गया प्रॉपर्टी। तो पहले के टाइम पे प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी इज बेसिकली अ बंडल ऑफ राइट्स। लाइक मेरे अगर राइट इस माइक को लेके हैं बिकॉज आई हैव पेड सम वैल्यूएबल अमाउंट टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो मेरे कुछ राइट्स आ जाएंगे इसके ऊपर और उससे ये जाहिर होगा कि मैं इसको जो है कहीं भी सेल आउट कर सकता हूँ, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, या इसके साथ मेरे कुछ राइट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। और इसी में फिर धीरे धीरे आगे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे नॉन टेंजिबल थिंग्स जिसको हम छू नहीं सकते हैं बट दे हैव दी देयर ओन वैल्यू इन द मार्केट, लाइक ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये मैं इसलिए आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई नया और नॉन ऑब्वियस प्रोडक्ट बना लेते हैं मान लीजिए मार्केट में, और कोई आपके प्रोडक्ट को चोरी कर लेता है, इन्फ्रिंजमेंट राइट्स आ जाते हैं आपके पास, मतलब आप इन्फ्रिंजमेंट एक्ट लगाते हैं, तो क्या सारे कानून बन सकते हैं। लेट सपोज दैट आपने कंपनी के साथ मिलकर कोई इन्वेंशन किया, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, और आप चाहते हैं आपका जो राइट है वो उसके ऊपर रहे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप उसको सबसे पहले तो आप प्रोटेक्टेड हो बाय दी लाइक लॉफुल राइट्स, मतलब कि कई सारे जो आपको सिक्योर करने के लिए जो राइट्स हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट है, तो वो होना चाहिए। नहीं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे, मतलब आप उससे रिलेट ही नहीं करेंगे। वो कोई और जाके प्रोडक्ट आपका पेटेंट करा लेगा, उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा कल को, राइट। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इससे रिलेटेड कुछ लॉफुल टर्म्स को भी जानें, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको जो है इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफ कर रहा हूँ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है कि कुछ भी हमने अपने इंटेलेक्ट, अपने ब्रेन का यूज करके कुछ ऐसा नॉन ऑब्वियस क्रिएट किया जिसको बना पाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। समझ रहे हैं? पॉसिबल नहीं का मतलब उसको बनाने में ऐसा नहीं कि आप तुरंत आधे घंटे में 2 घंटे में उस चीज को कॉपी कर दें, बना लें, इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर। तभी आप उसका पेटेंट करा सकते हैं या उस चीज को आप कॉपीराइट करा सकते हैं, ठीक है। और कॉपीराइट और पेटेंट कराने के पीछे का मैंने आपको मोटो बता दिया। मेन मोटो यही है कि उसे कोई और कॉपी ना कर सके ताकि उसके राइट्स आपके पास रहें, ठीक है।
अगर मान लीजिए जो आपका जो है टेस्ला कंपनी को जो एलन मस्क चला रहे हैं, उन्होंने रिफिल रॉकेट्स लॉन्च किए थे, जो अगर मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी कोई और चुरा लेता, मतलब किसी और के पास उसके राइट्स आ जाते, तो फिर ये जो टेक्नोलॉजी है ये उनसे रिलेट नहीं करती, ठीक है। तो यानी कि इनके पास जो है ये कहने का कोई रीज़न ही नहीं था कि ये एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो आपके कभी कभी सीक्रेट्स को, आपके थॉट्स को भी कोई चोरी कर सकता है, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे आपके थॉट्स इतने वैल्यूबल हैं, लोग उसे चुरा सकते हैं, आपके आइडियाज़ को लोग चुरा सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कॉपीराइट एक्ट 1957 और जो पेटेंट एक्ट्स हैं उनको इन्फोर्स किया गया ताकि लोग आपके प्रोडक्ट्स को चोरी ना करें। आइए समझते हैं न्यू जो प्रोडक्ट्स था और न्यू सर्विसेज। एक्चुअली आपने मार्केटिंग जब पढ़ा होगा तो आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक मिक्स पढ़े होंगे, आपने 7 P's के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें हमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस करनी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स ओवर देयर, ठीक है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बनानी है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, हमें कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नया बनाना है, ठीक है। तो हम 4 P's में अगर बात करें तो प्रोडक्ट है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट फिजिकल एविडेंस हो जाएगा आपका, और आपका जो है तो पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। आप 7 P's के बारे में फैमिलियर होंगे, मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री की बात होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात होगी, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट कैसे इंट्रोडक्टरी स्टेज से उठ के और फिर डिक्लाइनिंग फेज तक चला जाता है, जिसमें कि कई सारे फेजेस आते हैं। जैसे आपका इंट्रोडक्टरी हो गया, ग्रोथ हो गया, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी, डिक्लाइन फेज हो गया। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट कैसे जो है मार्केट में आता है, उसके बाद कैसे प्रमोशन होने के बाद उसका एक डिक्लाइनिंग फेज आता है। बट क्या आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनका कोई डिक्लाइनिंग फेज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको डिक्लाइनिंग फेज में जाने ही नहीं देते। वो क्या करते हैं, उसमें कुछ नए चेंजेस लाते हैं, नए अपग्रेडेशंस लाते हैं, और उसको दोबारा से जो है मार्केट में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल यानी बन जाता है। उसको मार्केट से आउट नहीं होना पड़ता है। दे हैव देयर ओन ऑन सॉफ्टवेयर्स जिसको वो अपग्रेड कर देते हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होता है कि जो वो इनकैपेबल हो, इनकॉम्पिटेंट हो अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सर्विसेज में मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपका प्रोसेस आता है, फिजिकल एविडेंस आता है, ठीक है, और आपका जो है पीपल आता है, ठीक है। तो पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस है, ये 3 चीज़ें मार्केटिंग सर्विस मिक्स की हैं। सर्विस मिक्स का मतलब जिसको आप जो इंटेंजिबल फॉर्म में, जिसको आप छू नहीं सकते हैं बट वो वैल्यूबल है मार्केट में, उनका एक वैल्यू है, उसके कंपैरिजन में यू कैन अर्न मनी दैट इज रिलेट टू द मनी और इक्विवेलेंट टू द मनी, ठीक है। जैसे अगर हम पीपल की बात करें तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। पीपल सेंट्रिक यानी कि कोई भी आदमी अगर कहीं सामान लेने जा रहा है तो उसको वन रूफ के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक बार जाए और उसके बाद किसी अदर चीज़ के लिए उसे कहीं और जाना पड़े। जैसे आप लोग कभी इंश्योरेंस कराने कार आपने खरीदी, तो जब आपने कार खरीदी तो कार खरीदने के साथ साथ उसका इंश्योरेंस और बाकी सारी सर्विस की चीज़ें जो है उसके साथ इनबिल्ट हो जाती हैं। तो आदमी को कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। सब पीपल सेंट्रिक अप्रोच। इसके अलावा प्रोसेस आता है। प्रोसेस मीन्स द डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच ईच एंड एवरी कंपनी हैज टू फॉलो। तो उसे फॉलो करना पड़ता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो विजन उस कंपनी ने देखा है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एविडेंस आता है जिसमें हम अपीयरेंस की बात करते हैं, जिसमें प्रोडक्ट पैकेजिंग एक अच्छा रोल निभाती है। यानी कि अगर आपका शैम्पू ग्लो नहीं करेगा, शाइन नहीं होगा, प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सर्विसेज के अंदर समझते हैं। न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स में आइए समझ लेते हैं कि इनोवेशन क्या रोल प्ले कर रहा है। इनोवेशन कैन बी मेड इन द वे इन विच a product is manufactured. Against this might be by developing an existing technology or by adopting a new technological approach. आपने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, आपने कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर देखे होंगे जैसे कि इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, बहुत सारे ड्रोने होते हैं एंटरप्रेन्योर। तो इस तरीके के कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो नए टेक्निक्स में नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं इजीली और चाहते हैं कि जो है नए नए इनोवेशन होते रहें ताकि जो है मार्केट में, जैसे कभी होता क्या है जनरली लोगों की कंप्लेंट होती है सर जॉब्स नहीं आ रही हैं, ठीक है। मैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में MBA के सब्जेक्ट्स देखता हूँ,
तो वहाँ पर क्या होता है, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब रिसेशन है, जॉब तो आ ही नहीं रही है सर, और नौकरी नहीं लग रही। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, रिसर्च नहीं हो रही, चीज़ें बंद हो रही, लोग जो है रिसर्च नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में। क्या होता है कि कोई बड़ा प्रोडक्ट है, उसको छोटा प्रोडक्ट उसका बना दिया गया, छोटा वर्जन आ गया, कोई छोटा है तो उसका मीडियम वर्जन आ गया, बस यही हो रहा है। कोई नई चीज़ नहीं आ रही है मार्केट में, कोई नए थॉट प्रोसेस के साथ कुछ भी नया इन्वेंट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रिसेशन टाइप की चीज़ आ रही है। यहाँ पर ये हो रहा है कि चीज़ें उतनी बैलेंस्ड वे में चल नहीं रही, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें नई सोच के साथ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना होगा, ठीक है। नोवेल थिंग्स पे ही आपको पेटेंट मिलता है कि वो नोवेल होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपको उसका पेटेंट मिलेगा। कॉपीराइट, जैसे आपने देखा होगा कभी भी कोई लिरिकल वर्क आपने किया, कोई आपने कोड लिख दिया, ठीक है, या कुछ आपने कोई नया गाना ही लिख दिया, ठीक है, तो ये सब नई चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जो क्रिएटिविटी है, उस सारी चीज़ों पे आपको क्या मिल जाता है, कॉपीराइट मिल जाता है, ठीक है। तो कोई और उसको नहीं बना सकता है, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कॉपीराइट तो उसी दिन से इशू हो जाता है जिस दिन से आप उसे पब्लिश कर देते हैं, जिस दिन से आप पब्लिश करते हैं उसे, उस दिन से आपको वो मिल जाता है। इसके अलावा जब भी आप कभी ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो इससे सोसाइटी में मोटिवेशन आता है, ठीक है। अगला आदमी भी सोचता है कि अब मुझे भी बनाना है प्रोडक्ट, ताकि जो है मुझे भी नेम फेम मिल सके, मुझे भी वो मार्केट मिल सके, जिसको मैं एक अच्छा प्रॉफिट जिससे मैं बना सकूं, मेरा एक नाम हो और मैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जाना जाऊं। तो इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ठीक है। कुछ अगर स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, नहीं तो आपने देखा होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, कोई बिजनेस है उसको ग्लोबली प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि आपके पास कुछ नए आइडियाज़ हैं, और फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं वो आपकी जो फाइनेंशियल जो एनालिसिस है, जो सारी चीज़ें उसको देख के आपको एक लोन ग्रांट कर देती हैं प्रोजेक्ट पे आपके। आप जब उसका प्रोटोटाइप वगैरह बना लेते हैं, प्रोटोटाइप 1 2 3 4, मतलब जब भी आप बना के उसे फाइनलाइज करके देते हैं तो उस पर आपको एक फाइनेंस ग्रांट हो जाता है। फाइनेंस ग्रांट करने के लिए सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ होता है वो ये होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया तो आपके प्रोजेक्ट को देखते ही उसको ग्रांट कर देंगे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिजिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। फिजिबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हर तरफ से आंक लिया जाता है कि वेदर इट इज़ वैल्यूबल और नॉट, ठीक है, हर तरीके से उसे देख लिया जाता है। इसमें आपका ये देख लिया जाता है कि प्रोडक्ट कितना फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या यूज कर रहे हैं, मार्केट में वो आगे ग्रैब कर पाएगा, मार्केट को कैप्चर कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके अंदर यूनिकनेस क्या है, ठीक है। तो ये सारी टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी टेस्टिंग करने के बाद जितनी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसे ग्रांट कर दिया जाएगी। नाउ कम टू दी स्लाइड कस्टमर अबाउट दी प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर अबाउट दी प्रोडक्ट। मैम जस्ट बैक द स्लाइड। हाँ, तो इसमें है न्यू मीन्स ऑफ इनोवेटिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत सारी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मिलके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कंपनी के लिए। उससे कोप अप कर पाना कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जहाँ पर आपने देखा कि वो नए बिजनेस के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो एक नए वेंचर को स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है, सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो बिजनेस आपका जो है डिक्लाइनिंग फेज में कभी भी आ सकता है। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्वांटिक डिवीजन कंपनी, जनरल मोटर कंपनी यूएसए की है। उसमें आपने सुना होगा एक एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है आपका वेनिला एलर्जिक कार। इसमें क्या होता था कि कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि मेरी कार जो है वो वेनिला आइसक्रीम में एलर्जिक है और जब भी मैं ऐसी आइसक्रीम खाता हूँ तो मेरी कार स्टार्ट नहीं होती है। तो छोटी सी फीडबैक जाती है कंपनी में और सडनली कितना बड़ा बूम आता है, कितना बड़ा चेंज आता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जब ये पहली बार जाती होगी तो आपको पता ही है कि जैसे सभी हंस रहे हैं, आप भी हंस ही रहे होंगे, तो वैसे ही सब उसको जो है ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब जो है उस बात को कि चलो ठीक है, ऐसे ही कस्टमर ने कोई फीडबैक दे दिया होगा मजाक मजाक में। लेकिन देखते देखते ये एस्केलेशन का पॉइंट बनती है और एस्केलेट होते होते जब टॉप मैनेजमेंट तक जाती है, दैट मीन्स अब वहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर
जो नहीं चाहता है कि उसकी उसकी कंपनी की कोई भी नेगेटिव इमेज बने, तो वो सडनली इस चीज़ को देखता है, टेक ओवर करता है इस सारे पर्टिकुलर केस को, और जो भी साइंटिस्ट होते हैं, उनकी कंपनी के जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको तुरंत अपॉइंट करता है कि वो जाएं और इस चीज़ को चेकआउट करें कि वाकई में क्या मेरी कार जो है वनीला एलर्जिक है या नहीं। ठीक है, अब जिसका पैसा नहीं लगा है वो तो जाहिर सी बात है चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ही लेगा, लेकिन वाकई में जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जो नहीं चाहता है कि उसकी कंपनी कभी भी इस तरीके से कोई भी चैलेंजेस को फेस करे, तो उसने अरेंज किया मीटिंग, खाली समय लेके उन्होंने टाइम निकाला और उनसे बोला कि सर जिस दिन अब वनीला आइसक्रीम खाने जाएंगे आप तो बता दीजिएगा। वो एक्चुअली आउटलेट जो था वो उसके घर के डिस्टेंस से अप्रॉक्सीमेट 25 to 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। वो सडनली वहाँ पर जाता है और जाने के बाद जो है वो उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो कहते हैं सर आप आइसक्रीम लेने किस दिन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आइसक्रीम लेने नेक्स्ट सैटरडे को जा रहा हूँ। नेक्स्ट सैटरडे को प्लान होता है और सारी रिसर्च टीम उनकी गाड़ी में बैठती है और जो है गाड़ी में बैठ के वनीला आइसक्रीम लेने आते हैं। जैसे ही वनीला आइसक्रीम लेके कार में बैठते हैं, कार बंद हो जाती है। रिसर्चर्स की टीम परेशान हो जाती है कि व्हाट इज हैपनिंग, और वाकई में जो कस्टमर ने कहा था वो बात तो एकदम सच होती नजर आ रही है। फिर काफ़ी रिसर्च होती है, काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है इन सारी चीज़ों पे, और देखते देखते पॉइंटेड डिवीजन कंपनी को और जो जनरल मोटर कंपनी है यूएसए की, उसको पता चलता है कि इसमें एक ग्रेट फॉल्ट ये हो जाता है कि जब वो दूसरी कोई ब्रांड की आइसक्रीम लेने जाता है दूसरे स्टॉल पे सेम शॉप के अंदर, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वनीला आइसक्रीम से ही एलर्जी थी कार को और बाकी सारी कारों से नहीं थी। तो ये सारी बातें जब जाती हैं मैनेजमेंट में और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके एक फाइनल रिजल्ट निकलता है कि कम जो कार थी वो बेसिकली क्या हो रहा था कि जिस आउटलेट पे जाता था वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करके, तो जो वनीला आइसक्रीम का जो आपका जो स्टॉल था वो थोड़ा करीब था, तो पेमेंट करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, जिसकी वजह से बाकी अदर जो आइसक्रीम्स थी उनके स्टॉल्स को उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था पेमेंट करने में, जिससे कार ठंडी हो सके और बबलिंग हो सके इंजन में। इसकी वजह से कार गर्म ही रहती थी और स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन बाकी की जो जब वनीला आइसक्रीम लेने आता था तो कार को थोड़ा ठंडा होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता था, उसमें उसके इंजन में बबलिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। और ये एक कार की प्रॉब्लम नहीं थी, ये बाद में ये बाकी सारी कारों में बहुत तेजी के साथ प्रॉब्लम आई। कंपनी ने इसको तुरंत इनिशिएट किया और सारी कार को वापस लिया, उसके इंजन से रिप्लेसमेंट की। तो एक छोटी सी चीज़, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कस्टमर ओरिएंटेड चीज़ें हों, यानी कि कस्टमर को हम कहते हैं गॉड ऑफ द मार्केट, या हम ये कहते हैं कि ही इज द किंग ऑफ द मार्केट, कि कस्टमर को हम पहला प्रिविलेज देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी स्टडी करें। हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी है, हम उनके बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, और डेफिनेटली इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। पीपल विल ओनली यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस इफ दे नो अबाउट इट। डिमांड विल नॉट एग्जिस्ट if the offering is not properly promoted to them। अब प्रमोशन एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। इसके अलावा ब्रांडिंग है, प्रोडक्ट इमेजिंग है, सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, कई सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको जियो कंपनी के बारे में बताता हूँ। रिलायंस ने एक टाइम पे अभी प्राइसिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसने बाकी सारे, यानी कि 2016 में अप्रॉक्स उसने मार्केट में एंटर किया। 18 में फ्री चला, 18 तक, और उसके बाद आपने देखा ही होगा कि परिणाम क्या हुआ। रिजल्ट में क्या हुआ, आइडिया और यूनिनॉर और बाकी सारे जितने भी एयरटेल और एयरसेल टाइप की जो सिम सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी, सब सडनली जो है बंद होने लगी। कंपटीशन नहीं फेस कर पा रही थी जियो का, बिकॉज जियो एक नई स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में उतरा था। जैसे आपने फ्रीबीज देखे होंगे ना, फ्रीबीज में जनरली क्या होता है कि फ्री की आदत डालो, और फ्री की आदत इतनी खतरनाक होती है कि आपको, जैसे आपने देखा होगा कई सारी सिगरेट सेलिंग कंपनीज क्या करती हैं, आपको सिगरेट्स फ्री में ऑफर करती हैं। तो धीरे धीरे आपकी जब आदत बन जाती है तो उसके बाद उसके प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि जियो ने जैसा स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया। इसमें प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो एप्पल की बात कर लें, प्राइस को स्कीम करना, यानी कि जो क्रीमी चीज़ है, खाली ऐसे कस्टमर्स को पॉइंट आउट करना जो क्रीमी लेयर का है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब ये सारी स्ट्रेटजी प्राइस बंडलिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करती है। नहीं, हम एक प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम उसके साथ पूरा बंडल बेचेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ ऑफर नहीं की जाएगी, लाइक पेंसिल खाली नहीं बेचेंगे, पेंसिल, रबड़ और उसके साथ रेजर और सारी चीज़ों को हम सेल आउट करेंगे।
एक पैकेज बेचेंगे तो कस्टमर को इजी पड़ जाता है, एक एक यूनिट को खरीदने से अच्छा है कि वो पूरा का पूरा पैकेज खरीदें। ठीक है, आप लोग बाहर कहीं टूर पे जाते होंगे, टूर पैकेज बिकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप बंडलिंग में ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे स्ट्रेटजीज हैं जो कंपनी टाइम टू टाइम इस्तेमाल करती है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल इनोवेशन। मल्टीपल इनोवेशन, एन एंटरप्रेन्योर वेंचर डज नॉट हैव टू restrict itself to just one innovation or even one type of innovation. Success can be built on a combination of innovations. For example, a new product delivered in a new way with a new message. देखिए होता क्या है कि जनरली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट, जो इनोवेशन है वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और फिर आप उसकी खा रहे हैं। ठीक है, फिर आप बैठ गए हाथ पे हाथ रख के कि चलो एक बार इनोवेशन हो गया, अब हमें कोई इनोवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मल्टीपल इनोवेशंस करने पड़ेंगे। हो सकता है विद इन अ ईयर आपको कई सारे चेंजेस करने पड़े अपने प्रोडक्ट में, उसको उस पीक तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है किसी भी वेंचर को रन कराने के लिए आप जो है एक ही तरीके का इनोवेशन करें, बट मल्टीपल इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। और प्रोडक्ट को नए तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवर्ड करना पड़ेगा और नए मैसेज के साथ। ठीक है, एक ही मैसेज को सेम आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो मे बी एक ओल्ड फैशन हो जाएगा, और ओल्ड फैशन होने के साथ साथ वो लोगों के ट्रेंड में नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसको और भी आगे समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इनोवेशन की फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इनोवेशन की। सो अगर हम जिन्सबर्ग की बार मतलब उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है यहाँ पर। आपने कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना होगा, लेकिन ये क्या है, एक कॉर्पोरेट टाइप का एंटरप्रेन्योर है, मतलब कॉर्पोरेट को देखा जा रहा है इसमें। एक एंटरप्रेन्योर है जो कॉर्पोरेट लेवल की थिंकिंग को रखता है। एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक द बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस विद इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनल इनोवेशन और वेंचरिंग and the transformation of organization through renewal of the key ideas on which they are built. अच्छा, आपने सुना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश अ सिंगल गोल। एक ऑब्जेक्टिव के पीछे सारे के सारे जो पूरा स्टाफ होता है, चाहे वो HR हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका मार्केटिंग सेक्शन हो, ये सारे के सारे लोग मिलते हैं और मिल के अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एकम्प्लिश करते हैं, या अपना कंपनी का जो विजन होता है उसको एकम्प्लिश करते हैं। तो बेसिकली इतने सारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स मिलकर काम करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही कहना है कि बिकॉज हमारे पास क्या है, क्रिएटिविटी जो है वो ब्रेन से रिलेट करती है, आपके इंटेलेक्ट पार्ट से ब्रेन करती है। आप कितने क्रिएटिव हैं वो डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कितना पावरफुल है, आपका विजन कितना है, आप कितना ज़्यादा सोच लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, आपका परसीवरेंस कैसा है, आप कैसा परसीव करते हैं। ठीक है, आपका पर्टिकुलर चीज़ के प्रति एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपका साइकोलॉजिकल वे कैसा है चीज़ों को लेकर। ठीक है, उसी प्रॉब्लम को लेके एक हाई क्लास एंटरप्रेन्योर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर या टॉप मैनेजमेंट, एक लोअर क्लास और एक उससे भी नीचे मिडिल और लोअर, इन सबका वे ऑफ परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, कहीं पर भी किसी मैनेजर ने नट सेलिंग मतलब जो कोकोनट है, कोकोनट को सेल करके और वहां से क्या करना था कि शूज को बेचना था। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, रिबॉक, नाइके, ये केस स्टडी भी है कंपनी की कि एक शू सेलिंग कंपनी को शू बेचना था, अपना जूता वगैरह, और उसने ऐसी जगह पर टारगेट किया हुआ था जहाँ पर लोगों के पास पहनने के लिए जूते ही नहीं थे, चप्पलें थी खाली, और उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो भी वीक थी। ठीक है, साथ ही साथ क्या था, उनके पास खाली नारियल के अलावा कोई और ऐसी चीज़ वैल्यूबल नहीं थी जिसको वो ऑफर कर सकते थे। तो वो अपने लोअर मैनेजमेंट के साथ ये चीज़ें फेस कर रहे थे। उनको वहाँ पर अपना स्टार्टअप बनाना था, और ये चैलेंज था कंपनी के लिए भी कि इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, पहले जो है मैनेजर को भेजा जाता है कि भाई आप जाइए अपनी रिपोर्ट तैयार करिए। वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आदमी के पास पैसा है ही नहीं, उसके पास पे करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या पे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट
किसी मैनेजर को भेजते हैं, उससे भी पूछते हैं कि भाई वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करिए, कैसे कर सकते हैं हम, हमें शूज़ बेचने उनको, ठीक है। तो वहाँ पर भी फिर वो भी जाते हैं अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि भाई यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पर तो कोकोनट के अलावा कुछ काम ही नहीं करते लोग, बनाते ही नहीं है, और जो है कुछ नहीं हो सकता सर। फिर उसके बाद जो है जब नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट क्रिएटिव आदमी को वहाँ पर भेजा जाता है, तो सडन वो वहाँ से एक रिस्पॉन्स लेके आता है, सर इट इज पॉसिबल कि हम वी कैन सेल आवर लाइक शूज वेरी इजीली टू देम, बिकॉज उनके पास क्या है, उनके पास वैल्यूबल प्रोडक्ट है, उनके पास कोकोनट है, और वो उनका जो है उस पर क्या है, उनके वेदर एडवांटेज है, उनके पास क्लाइमेटिकल एडवांटेज है, ठीक है। वो जितने में प्रोडक्ट को बना के बेच हमें दे सकते हैं, उतने में कोकोनट कहीं और बेचा ही नहीं आ सकता है। तो हम अपने प्रोडक्ट के बदले में उनसे वैल्यूबल प्रोडक्ट कोकोनट को ले लेंगे और हम उसे सेल आउट कर देंगे मार्केट में। और कोकोनट से कई सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोकोनट ऑयल बनता है, कोकोनट की रस्सी बनती है, राइट, रोप बिजनेस भी है उसमें कोकोनट के अलावा, ठीक है। तो वैल्यूबल प्रोडक्ट है, उससे कई सारे बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो उसको हम सर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मतलब तो शूज़ की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं सर, और इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। यानी कि आपकी थिंक करने की एबिलिटी आपको पावर देती है दैट यू कैन फेस द अपॉर्चुनिटीज़, और चैलेंजेस को फेस करते हुए आप क्या वैल्यूबल दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इनोवेशन, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स का इस्तेमाल करके अगर हम किसी कॉर्पोरेट को रन करते हैं, तो जो है वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाता है। इसमें क्या सारी चीज़ें हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट बिजनेस डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, स्पेशल बिजनेस यूनिट होनी चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। जैसे कि हम अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात करें, आज के टाइम पे बहुत ओल्ड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया कि जो है लोग प्रॉपरली एक वे बना हुआ है, मतलब ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन लोग जो है जा रहे हैं, चप्पलें घिसी जा रही हैं, केस की डेट नहीं आ रही है, लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं। बट वहीं पर देखिए ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक स्पेशल यूनिट दे दी गई और फटाफट वहाँ पर जो है, या आर्बिट्रल यूनिट दे दी गई और वहाँ पर केस रिजॉल्व हो रहा है फटाफट। तो वैसे ही एक स्पेशल यूनिट भी होना चाहिए, एक स्पेशल बिजनेस यूनिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ को मतलब देखने के लिए, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए। माइक्रो न्यू वेंचर्स डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, न्यू वेंचर डिविजन्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स होनी चाहिए, मतलब छोटी छोटी बिजनेस यूनिट्स हों जो इंडिपेंडेंट हों, जो अपना दिमाग अपने से लगा सकें, चीज़ों में हेल्प कर सकें आपको। इसके अलावा नर्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, इसके अलावा कंप्लीट स्पिन ऑफ है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कॉर्पोरेट बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए, मतलब एक कॉर्पोरेट के लिए। फिर है सोर्सेज ऑफ इनोवेशन। सो in this book Innovation and Entrepreneurship, Peter Drucker proposed that those interested in starting an entrepreneurial venture either within an established company or as independent small business should monitor 7 services of innovation opportunity। 7 तरीके की जो सर्विस जो अपॉर्चुनिटीज है उसको हम ग्रैब कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें ट्रांसलेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज इनटू अ यूजफुल एप्लीकेशन, यहाँ पर इन्वेंशन वर्सेस इनोवेशन के बारे में बताया गया है। एनालिटिकल प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन, फिर कमर्शियल एप्लीकेशन उसका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एनालिटिकल प्लानिंग होती है, प्लानिंग दैट मींस अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल नीड्स। तो ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी है। नाउ कम टू द ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, दैट हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कभी कभी आपके पास कोई एम्प्लॉई है, राइट पर्सन शुड बी रिप्लेस एट द राइट प्लेस होता है, और आप अपने उस रिसोर्स को कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपको अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा। टू ऑब्टेन मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल, दीज आर द रिसोर्सेज जो आपको इम्प्लांट करने होंगे आपके जो विजन है उसकी तरफ। अगर रिडायरेक्ट है तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। नाउ कम टू द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन एक फेज है जहां पर सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यहाँ पर एकम्प्लिशमेंट आता है, प्रोसेस मैनेजर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर होता है। तो इन सारे लोगों का काम क्या है, चीजों को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फेज में सारे के सारे आएंगे। फिर एक कॉमर्शियल एप्लीकेशन, अब उसके बाद जो है कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा जो प्रोडक्ट है, और वहां पर वैल्यूज ऐड कर दी जाएंगी उसके अंदर, ताकि अगर वो वैल्यूबल फॉर मनी है, यू विल गेट दी money, you will get the future profit, or otherwise if you faces the failure, so not an issue, definitely failure is the key to success।
और ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड होंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर सेमिनार, एंड मुझे लगता है कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप एंड आई विश ऑल ऑफ यू बी लाइक टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। और अगर इससे आपको कोई भी बेनिफिशियल मैसेज मिला हो तो डेफिनेटली आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, या अगर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टअप करने वाले हैं, तो डेफिनेटली मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इन सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे अपने एक नए बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू वेरी मच।